Good morning children, welcome to EVS class, and today I am going to discuss chapter number 11 whose title is Value of Flowers. In this chapter we discuss about flowers. Here is a plant. First of all we study about the parts of the plants, and there are different parts of the plant. Basically a plant is divided into system, shoot system and root system. You can see upper part is shoot system and below part is root system, underground part is root system. In the shoot system there are parts flower, fruit, stem, leaves and node and internode and bud. Node is the part where leaves comes out from the stem. This is a part on the stem where leaves comes out, and internode is the part between two nodes. दो नोड के बीच में जो पार्ट होगा उसको इंटरनोड कहेंगे, और नोड वो पार्ट होगा जहाँ से लीव्स निकलती हैं स्टेम से. एंड इन द रूट सिस्टम basically primary roots and secondary roots are there. Primary root is the main root होती है, फिर इससे फर्दर जो ब्रांचेज निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी रूट्स कहते हैं. तो these are the parts of the plants, and out of all these parts most important part of the plant is flower, and we are going to discuss about the flowers. As we have discussed that root, stem, flowers, fruits, buds, leaves, etc. are the parts of the plants, and but out of them which is the most beautiful part of the plant? Yes, that is flower. फ्लावर है वो सबसे ब्यूटीफुल जो पार्ट है प्लांट का, वो फ्लावर है. तो फ्लावर के बारे में ही पूरा चैप्टर है. लेट अस डिस्कस. There are so many flowers of different colors such as red, blue, orange, white, pink, purple, yellow and many more colors are there. Flowers are so beautiful. There is a place in India where so many flowers of different varieties grow. This place is located between mountains or hills, and this place looks so beautiful due to varieties of flowers. And you know what is the name of this land? This land is known as Valley of Flowers, and name of this Valley of Flowers is Uttarakhand. Uttarakhand is known as Valley of Flowers. In Uttarakhand there are so many varieties of flowers of different colors. Now, what is valley? A valley is a land between hills or mountains, and the Valley of Flowers in Uttarakhand is located between the Himalayan mountains. Now we locate Uttarakhand in the map of India. You can see in India map of India there is a red colored part. This is Uttarakhand. This region is Uttarakhand. तो रेड कलर्ड पार्ट इन मैप ऑफ इंडिया शोज उत्तराखंड को दिखा रहा है ये पार्ट. इट इज़ उत्तराखंड में जो ये पार्ट है वैली ऑफ फ्लावर, इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ फ्लावर्स. जो उत्तराखंड है जिसको हम वैली ऑफ फ्लावर्स कह रहे हैं वो फेमस है पूरे वर्ल्ड में अपनी जो फ्लावर्स हैं उनकी वैरायटी के लिए. ठीक है, और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं. पीपल कम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया टू सी इट्स नेचुरल ब्यूटी. इंडिया से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स में घूमने के लिए, यहाँ पिकनिक मनाने के लिए, और इसकी ब्यूटी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देखने के लिए. डू यू नो वैली ऑफ फ्लावर्स इज़ ए नेशनल पार्क. जो ये है वैली ऑफ फ्लावर्स वो नेशनल पार्क भी है. यहाँ ये इसको नेशनल पार्क भी मतलब माना जाता है, नेशनल पार्क के अंदर भी आता है. Now, what is national park? National park is a large area of land which is
protected by the government because of its natural beauty, plants और animals. नेशनल पार्क एक ऐसा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है। किस लिए? उसकी नेचुरल ब्यूटी को बचाने के लिए, या फिर वहाँ पे प्लांट्स हैं जिनकी वैरायटी अलग हैं और उन प्लांट्स को बचाने के लिए नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए जाते हैं, या फिर एनिमल्स की वैरायटी को भी कंजर्व करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए भी नेशनल पार्क इस्टेब्लिश किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, पीपल कैन विजिट दीज पार्क्स बट आर नॉट अलाउड टू हार्म इट्स नेचुरल ब्यूटी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि जो लोग यहाँ पे घूमने आ सकते हैं लेकिन उनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो वहाँ की ब्यूटी को, मतलब उसकी सुंदरता जो उस जगह की है, या फिर वहाँ के जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनको कुछ हानि पहुँचाएं, उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकते कोई भी लोग। ठीक है। तो घूमने आ सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं पहुँचा सकते हैं, हार्म नहीं कर सकते। हार्म का मतलब नुकसान पहुँचाना, डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट देखिए, इन इंडिया देर आर 105 नेशनल पार्क्स। 105 नेशनल पार्क हैं इंडिया के अंदर। सम फेमस नेशनल पार्क्स आर, कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, इट इज़ इन असम। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड। रणथंबो नेशनल पार्क, इट इज़ इन राजस्थान। एंड नेक्स्ट इज कान्हा नेशनल पार्क, इट इज़ इन मध्य प्रदेश। Now we will discuss about parts of flower. Parts of flower. First of all, colored part, that is petal. Here is yellow colored part is petal. जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम पेटल्स कहते हैं। यहाँ पे 3 पेटल्स नज़र आ रही हैं, 3 पेटल्स आर देयर प्रेजेंट। एंड ग्रीन, जो इसके नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ग्रीन कलर के, एक सेकेंड, देखिए ये इनको हम कहते हैं सेपल्स। दीज आर सेपल्स। ठीक है। ये 4 होती हैं, 5 होती हैं नीचे। सेपल्स के, सेपल पेटल्स के नीचे होती हैं। ऊपर वाली पेटल्स होती हैं जो कलर्ड होती हैं और नीचे जो ग्रीन होती हैं उनको हम सेपल्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये है पिस्टल। पिस्टल के अंदर 3 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? ये वाला पार्ट स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद ये जो डंडी सी है जिससे जुड़ा हुआ है ये स्टाइल है। उसके बाद ये जो गोल वाला पार्ट है नीचे जो फ्लावर के बिल्कुल बीच में होता है इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है। और इधर साइड में देखिए स्टेमन। स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं फर्दर, एक तो एंथर, एंथर ये वाला, और ये फिलामेंट। ठीक है। जो एंथर होता है इसके अंदर फिर पोलन्स होते हैं, छोटे छोटे बीज होते हैं, एक तरह से सीड्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे पोलन्स क्या होते हैं इसमें से निकल के इस एंथर में से और बिखर जाते हैं। किसके द्वारा? डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, या तो किसके द्वारा? विंड के द्वारा, या फिर अगर कोई बर्ड यहाँ पे आके बैठेगा फ्लावर के ऊपर, या फिर जैसे बटरफ्लाई वगैरह बैठती हैं तो उनके पैरों के साथ या उनके विंग्स के साथ चिपक के वो पोलन्स यहाँ पे आ जाते हैं, इस पे स्टिग्मा पे। ठीक है। और स्टिग्मा के थ्रू वो अंदर चले जाते हैं स्टाइल से होते हुए ओवरी तक। ठीक है। यहाँ पे वो जो ओवरी के अंदर फिर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओव्यूल नीचे। ठीक है। ओव्यूल छोटे छोटे सीड होते हैं ये भी। ठीक है। एक तरह से सीड होते हैं ये मान के चलिए। उन सीड के साथ पोलन्स क्या करते हैं? फ्यूज़ हो जाते हैं। फ्यूज़ का मतलब उनके साथ जुड़ जाते हैं और फिर बाद में जाके वही जो फ्यूज़ होके जो बनता है उसको हम सीड कहते हैं। बाद में वो सीड बनता है और उस सीड को कवर कर लेते हैं। ये पत्तियाँ गिर जाती हैं, पेटल्स और सेपल्स, और फिर पूरा एक फ्रूट बन जाता है बाद में धीरे धीरे। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये नीचे वाला पार्ट जो है इसको स्टॉक बोलते हैं, जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ होगा, वो भाग स्टॉक कहलाता है, CSTALK। ठीक है। और ये जो है ना, ये मोटा सा भाग जो स्टॉक के ऊपर है इसको हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल। दिस इज ऑल अबाउट ए फ्लावर पार्ट्स। नाउ देयर आर सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फ्लावर्स. There are some flowers that
ब्लूम ओनली एट नाइट, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो सिर्फ रात के समय खिलते हैं, एग्जाम्पल नाइट क्वीन जिसको हम रात की रानी बोलते हैं, ऑर्चिड कैक्टस जिसको हम ब्रह्म कमल भी कहते हैं, एंड सम फ्लावर्स दैट ब्लूम एट डे एंड क्लोज एट नाइट, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो दिन के समय खिलते हैं, रात को क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जैसे मॉर्निंग ग्लोरी एंड हिबिस्कस, जैसे चाइना रोज जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं। सम फ्लावर्स दैट ब्लूम ऑल ईयर राउंड, कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो पूरा साल खिलते हैं, ब्लूम करते हैं, ठीक है, ऑल मंथ मतलब सभी मंथ में वो रहते हैं, जैसे सदाबहार जिसको पेरीविंकल भी कहते हैं, पेरीविंकल इन इंग्लिश एंड सदाबहार हिंदी में कहते हैं, और रोज़ जो फ्लावर है रोज़ भी पूरे साल रहता है। एंड सम फ्लावर्स दैट ब्लूम ओनली इन सर्टेन मंथ्स, और कुछ ऐसे भी फ्लावर्स होते हैं जो कुछ ही महीनों में कुछ महीनों के लिए खिलते हैं, पर्टिकुलर महीनों में ही खिलते हैं, जैसे मैरीगोल्ड और डहेलिया, ये कुछ ही मंथ्स में ब्लूम करते हैं। नेक्स्ट फ्लावर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल, कुछ ऐसे फ्लावर होती हैं जिनकी बहुत ही स्मेल मतलब तेज होती है, हमें आंख बंद करके भी पता चल जाता है कि कौन सा फ्लावर है, जैसे जैस्मिन और रोज़ का फ्लावर भी अगर पास में होगा तो आंख बंद करके भी आपको पता चल जाएगा कि वो रोज़ है, रोज़ की स्मेल आ रही है। या फिर मैरीगोल्ड भी ऐसा ही एक फ्लावर होता है जिसको गेंदे का फूल कहते हैं, उसकी भी स्मेल मतलब स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, आंखें बंद करके भी आपको पता चल जाएगा। नाउ मूव टू द यूजेस ऑफ फ्लावर्स। जो फ्लावर्स हैं उनके बहुत सारे यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में, जैसे सम फ्लावर्स आर ईटन, कुछ फ्लावर्स को खाया जाता है, जैसे बनाना फ्लावर्स, बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं उनको, ड्रमस्टिक फ्लावर, ड्रमस्टिक के भी फ्लावर्स होते हैं उनको भी एज ए वेजिटेबल खाया जाता है, कचनार के फ्लावर्स को खाया जाता है, और पम्पकिन के फ्लावर्स को भी खाया जाता है बच्चों। पम्पकिन के जो फ्लावर्स होते हैं उनके स्नैक्स बना के खाते हैं, ठीक है, फ्राई करके खाया जाता है। सम फ्लावर्स आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, कुछ फ्लावर्स को एज ए मेडिसिन दवाई के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे रोज़ वाटर, रोज़ ई आएगा यहाँ पे, गलती से मिस्टेक हो गया, ROSE, रोज़, जैस्मिन, कैलेंडुला, मैरीगोल्ड, ये फ्लावर्स कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको एज ए मेडिसिन दवाई के रूप में किया जाता है यूज़। जैसे आपने रोज़ को तो देखा, ये रोज़ वाटर के रूप में यूज़ किया जाता है, जिसको आँखों एज ए आई ड्रॉप्स और स्किन ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है स्पेशली। और जो मैरीगोल्ड है इसका एक पर्टिकुलर यूज़ है, ये वेरिकोज वीन से एक डिजीज़ होती है, उसमें भी ये स्पेशली यूज़ किया जाता है मैरीगोल्ड जो है फ्लावर। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स और सेंट्स, कुछ फ्लावर्स को परफ्यूम बनाने के लिए या सेंट्स जिसको हम परफ्यूम या फिर सेंट्स कहते हैं, या हिंदी में इत्र कहते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौन कौन से फ्लावर्स हैं, जैसे जैस्मिन, रोज़, ट्यूबरोज, लेवेंडर, ये वाले फ्लावर्स को यूज़ किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए। सम फ्लावर्स आर यूज्ड टू डाई क्लोथ्स, कलर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, क्लोथ्स को डाई करने के लिए, मतलब कलर्स बनाने के लिए, जैसे मैरीगोल्ड, हिबिस्कस, ब्लूबेल, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जिनको डाई के कलर्स बनाने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन मेकिंग रंगोली, ठीक है, कुछ फ्लावर्स को हम रंगोली बनाने में यूज़ करते हैं। टू मेक फ्लावर्स ऑर्नामेंट्स, आजकल जब पहले के टाइम पे भी जब ज्वेलरी नहीं होती थी, गोल्ड नहीं होता था या मेटल्स की जो ज्वेलरी नहीं होती थी, तो जो लेडीज़ थी वो फ्लावर्स की हेल्प से अपने आभूषण यानी कि ज्वेलरी एक तरह से बनाती थी, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण, ठीक है, मतलब सजाने के लिए अपने आप को वो यूज़ करती थी। इन मेकिंग गार्लैंड्स, माला बनाने में, बुक्के बनाने में फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा होम डेकोरेशन, घर को सजाने के लिए फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। देयर आर मैनी मोर यूजेस, और भी आप यूज़ लिख सकते हैं, देयर आर सम यूजेस। दिस इज़ ऑल अबाउट फ्लावर्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।